नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में संवाद के दौरान सवाल जवाब के दौरान राहुल गांधी से कैसे एक मोदी और बीजेपी समर्थक टकरा जाता है। बीजेपी वाला सवाल किया जाता है, ऐसा लगता है कि मानो सवाल बीजेपी की तरफ से भेजा गया था। राहुल गांधी कैसे उस व्यक्ति की बोलती बंद कर देते हैं, वीडियो में आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, पूरे सिस्टम पर आरएसएस की विचारधारा का कब्जा कराया जा रहा है। इसीलिए चुनाव में हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। Prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this. दोस्तों, राहुल गांधी ने दावा किया कि शुरुआत में जब मैं संविधान खतरे में होने की बात करता था तो कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि आप संविधान की किताब हाथ में लेकर ये सारे सवाल उठाइए। उसके बाद मैंने संविधान की किताब हाथ में लेकर भाषण देना शुरू किया और उसका जबरदस्त असर हुआ। चुनाव में भी इसका फायदा हमें मिला, ये राहुल गांधी ने दावा किया। People were not quite getting it, and we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it, and we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution, and everything we had said suddenly just exploded. राहुल गांधी ने जब ये दावा किया कि देश की जनता तक जब सीधा संदेश पहुंचा कि संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हराना है, तो चुनाव के दौरान ही बीजेपी को इस बात का इनपुट मिल गया था। पीएम मोदी भी ये बात जान गए थे कि हमारी 300 या 400 सीट नहीं आने वाली। हमें तो इस बात का अंदेशा था ही। उसके बाद पीएम मोदी बहकी बहकी बातें करने लगे और पीएम मोदी ने इस तरह का प्रचार शुरू कर दिया कि मैं परमात्मा से बात करता हूं, आदि इत्यादि। क्या कहते हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। When he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse that, what's happened here? How is this thing not working? And it's not just the Prime Minister, it's deeper than that. So what has happened in India, and you'll see it, is that the coalition that brought Mr. Modi to power has collapsed. It's broken right down the middle. Right. तो राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और इसी का असर उनके भाषणों में दिखाई देता था। तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि वो पीएम मोदी से आज भी नफरत नहीं करते। राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। You'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, him versus me. I don't think that's productive. दोस्तों, सवाल जवाब के सिलसिले में राहुल गांधी से एक ऐसा सवाल किया जाता है जिसे सुनकर साफ पता चलता है कि शायद बीजेपी से लिख कर आया है। सवाल पूछने वाले व्यक्ति कहते हैं कि इंडिया अलायंस में, मतलब आम तौर पर चाहे विदेशी मीडिया हो, देश की मीडिया हो, मोदी समर्थक चैनलों के अलावा, बीजेपी के नेताओं के अलावा इंडिया अलायंस शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करता। लेकिन यहां पर सवाल करने वाला इंडिया अलायंस का इस्तेमाल करता है। और सवाल की फ्रेमिंग देखिए। अमेरिका में रहने वाले लोगों को शायद इतना पता नहीं होता कि देश में कौन सी पार्टी किस विचारधारा की है।
सवाल करने वाला आरोप लगाता है कि आपके इंडी अलायंस में ममता बनर्जी आपके खिलाफ बयानबाजी करती हैं। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है वो हिंदुत्ववादी पार्टी रही है इतिहास में, तो आपकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, तो आप इंडी अलायंस में कैसे अच्छा भविष्य दे सकते हैं, ये सवाल किया जाता है। Hello. Mr. Gandhi, you lead the Indy Alliance, which is seen by many as an alternative to the BJP-led NDA government. Looking at the 2024 Lok Sabha elections, your party was not able to agree on seat-sharing policies with your alliance partner, which was Mamata Banerjee's TMC. You also have alliance partners like the Hindutva-based Shiv Sena UBT. My question is, if elected, how will you effectively run a government with such a divided coalition that cannot seem to agree on anything except for the removal of Prime Minister Modi? दोस्तों, जब राहुल गांधी ने कहा कि भैया इंडी अलायंस नहीं इंडिया अलायंस है, तो भी व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है। कहता है कि इंडिया में ए का मतलब फिर क्या है, यानी बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वही भाषा बोलता दिखाई दिया। साफ तौर पर नजर आ रहा था कि सवाल की फ्रेमिंग की गई है। इसके बाद राहुल गांधी समझाते हैं कि देखिए, जब इंडिया अंडर अटैक हमें लगा, हमें संविधान खतरे में लगा, इंडिया की जो मूल भावना है वो खतरे में लगी, तो हमने इंडिया अलायंस का गठन किया। और हर कोई इंडिया अलायंस बोलता है सिवाय बीजेपी के। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. It's not because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked, and it was very successful. And generally the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. हालांकि अमेरिका में राहुल गांधी की तमाम बातों को लेकर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, विदेशी धरती पर जाकर देश की सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, अमेरिका में जाकर देश विरोधी बातें कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पीएम मोदी विदेशों में जाकर जब पिछली सरकारों को कोसते हैं तो बीजेपी के नेता उसका भी महिमा मंडन करते हैं। तो आखिरकार ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? मतलब पीएम मोदी जाकर दूसरे दलों को कोस सकते हैं, पूर्व सरकारों को कोस सकते हैं, राहुल गांधी अगर वर्तमान सरकार पर विदेश में जाकर सवाल उठाएं तो गलत हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड तो कम से कम नहीं चल सकता। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी के भाषणों को लेकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।